So in the last class, what we talked about were the hormones. तो हम लोगों ने क्या बात करी थी कि hormones हमारे पास क्या होते हैं? They are chemical messengers that are released from the endocrine glands, and where do they act on? They act on the target organ. What are glands? We talked about the glands as well. तो भाई हमारे पास glands क्या होते हैं? They are tissues that, whatever they produce, they're going to secrete it. We have exocrine glands, glands which have a duct, and then we have endocrine glands, glands that do not have a duct, right? Then we talked about the different endocrine glands of the body. और फिर हम लोगों ने बात करी थी, we talked about the ADH or the antidiuretic hormone. ADH क्या करता है? ADH brings about reabsorption of water from where? From the collecting ducts of the nephron. इससे हमारे पास क्या होता है? जो यूरिन का वॉल्यूम होता है वो कम हो जाएगा. Now what's the need for this? What's the need for this? वालेकुम अस्सलाम बच्चे. What's the need for this? Is so that जो हमारे पास वाटर पोटेंशियल ब्लड के अंदर कम हुआ है वो दोबारा अपने सेट पॉइंट के ऊपर आ जाए. ठीक है. We talked about how would the urine be like with ADH or without ADH. ठीक है. So what we'll do is we'll just डब्बाify this. And okay. And we're done. Yay. So अच्छा अब एक चीज देखो नाउ. लेट्स डिस्कस कि भाई हमारे पास ये जो वाटर पोटेंशियल में चेंजेस आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं और इससे होगा क्या? इसको देखो. Whenever we talk about our circulation, so why do we call it a circulation? Because the blood is running around in circles. The red blood cell that's going to leave my nose is ultimately going to come back and come back to my nose, right? तो हम लोगों ने क्या देखा कि भाई हमारे पास ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ये जो मेरे पास ये डोनट है, दिस डोनट राइट हियर, दिस इज योर ब्लड सर्कुलेशन. कि भाई द ब्लड इज मूविंग अराउंड और इट कीप्स ऑन मूविंग अराउंड इन सर्कल्स. ठीक है. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अब अगर हम लोग इसको देखें, मैंने कहा अच्छा दिस सर्कल, दिस डोनट रिप्रेजेंट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ माई बॉडी, राइट? लेट्स से यहाँ kidney hai, so the very same blood that's passing through the kidney will go to some other part of the body as well. For example, मैंने कहा मेरे पास इधर इस पार्ट के अंदर I have a small part of the brain that we call as hypothalamus. ठीक है, ये hypothalamus है. Hypothalamus के थोड़ा सा नीचे हमारे पास right here, this particular gland is the pituitary gland. ठीक है. इस पार्ट के ऊपर हमारे पास स्किन है. Now what's happening is, इसको देखो, again what we are just showing you is a simple circulation. ठीक है. बस लाइबा इट्स जस्ट अ सर्कुलेशन कि वो ब्लड जो मेरे पास मेरी किडनीज के अंदर जा रहा है, the very same blood will go to my hypothalamus, will go to my pituitary, will go to my skin, will go everywhere else in the body. So this circle represents your circulation. Do we get this बेटे? ये वाली बात समझ में आ रही है? लाइबा, do we get this now? ओके, ऑलराइट. ठीक है. अच्छा, अब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से द पर्सन थ्रू देयर स्किन were sweating a lot, right? So let's say by they were playing football 12 p.m. in the afternoon in the month of June, right, in Karachi. अब वो बहुत सारा they're sweating, let's say way too much. अब इस sweating की वजह से क्या होगा? Where is the blood? Where is the water from the sweat coming from? It's coming from the blood, right? जो मैंने पानी पिया वो मेरे blood में गया, and the very same water collected heat and went to the sweat glands and went out of the sweat glands, right? Because my blood is losing water, उसके सॉल्यूट्स तो कहीं भी नहीं जा रहे ना, उसमें वाटर लेवल्स कम होती जा रही हैं. तो ब्लड का वाटर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन तो होगी, ब्लड का वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है. जब ब्लड का वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा तो हम लोगों ने कहा लेट्स से
अगर मेरे पास ब्लड का, दिस इज द सिंबल फॉर वाटर पोटेंशियल, राइट? तो मेरे पास ब्लड का वाटर पोटेंशियल कम हो गया। अब वही वाला ब्लड जिसका वाटर पोटेंशियल कम है वो पूरी बॉडी के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है? अब वही वाला ब्लड, because again we know that the plasma leaks out and surrounds the tissue forming the tissue fluid। अब इसी वाले ब्लड ने हाइपोथैलेमस को टिश्यू फ्लूइड रिलीज करा, मतलब व्हेन इट वुड सराउंड द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस इज अ टिश्यू, इट्स अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, वहां पे टिश्यू फ्लूइड रिलीज हो रहा होगा। हाइपोथैलेमस ने देखा कि भाई इस टिश्यू फ्लूइड का, यानी कि जो ब्लड से, जिस ब्लड से ये टिश्यू फ्लूइड फॉर्म हुआ है, उसका वाटर पोटेंशियल तो कम है, राइट? अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, आई एम गोइंग टू हैव सम न्यूरॉन्स। अब मैं इन न्यूरॉन्स से स्टिम्युलेट करता हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि पिट्यूटरी ग्लैंड, मेरे पास मेरे ब्लड का वाटर पोटेंशियल कम हुआ है, एक काम करो, एडीएच बनाना शुरू करो, रिलीज दिस एडीएच इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब जब वही वाला ब्लड जो मेरे ब्रेन से आ रहा है, व्हेन इट्स गोइंग टू सर्कुलेट ऑल अराउंड द बॉडी, इट्स आल्सो गोइंग टू गो इनटू द किडनी। तो वो एडीएच मॉलिक्यूल्स जो मेरे पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज करे थे, वो किधर जाएंगे? वो किडनी की तरफ जाएंगे, और किडनी में जाके किधर लग जाएंगे? ऑन द, सॉरी, ऑन द कलेक्टिंग डक्ट्स, राइट? और इसकी वजह से क्या होगा? नो, नहीं मिप्सम, ठीक है? अब जब एडीएच हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर जाके लग जाएगा, तो कलेक्टिंग डक्ट अब ग्लोमेरुलर फिल्टरेट से किस चीज को रीअब्सॉर्ब करना शुरू कर देगा? वाटर को। और ये सारा वाटर हमारे पास नेफ्रॉन से किधर जाना शुरू हो जाएगा? ब्लड के अंदर, राइट? यहां तक बात समझ में आ रही है? इज एवरीवन गेटिंग इट टिल हियर? यहां तक कोई मसला? हाँ, वेरी गुड मिनाहिल, एग्जैक्टली मिनाहिल। देखो आरफा, जब हमारे पास ब्लड का वाटर पोटेंशियल कम होगा, any fluid that's coming out of the blood will also have a low water potential ना? तो जब इस ब्लड ने हाइपोथैलेमस के पास जाके टिश्यू फ्लूइड बनाया, क्योंकि ब्लड का वाटर पोटेंशियल कम था, तो हमारे पास टिश्यू फ्लूइड का वाटर पोटेंशियल भी कम होगा। हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स योर होम्योस्टेसिस। हाइपोथैलेमस देख रहा है कि भाई वाटर पोटेंशियल, ग्लूकोज लेवल्स, क्या वो सेट पॉइंट के ऊपर हैं या नहीं है। जब हाइपोथैलेमस ने ब्लड का लो वाटर पोटेंशियल डिटेक्ट करा, हाइपोथैलेमस किस, देखो अगेन नेगेटिव फीडबैक चल रहा है ना, रिसेप्टर आ गया मेरे पास। रिसेप्टर अब किसको स्टिमुलेट करेगा? इफेक्टर को। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज द इफेक्टर, एंड व्हाट इफेक्ट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूसिंग? इट्स रिलीजिंग एडीएच। बात समझ में आई? अच्छा, अब जब यही वाला एडीएच किडनी के पास जाएगा, वो किडनी के कलेक्टिंग डक्ट पे जाके लग जाएगा और वाटर को रीअब्सॉर्ब कर देगा। वाटर रीअब्सॉर्ब होके किधर जाएगा? वापस ब्लड में आ जाएगा। अब ब्लड के अंदर वाटर की वॉल्यूम बढ़ती जा रही है, वाटर पोटेंशियल अब दोबारा कौन से वाले पॉइंट के ऊपर आ गया? वाटर पोटेंशियल सेट पॉइंट के ऊपर आ गया। सो कैन आई से कि जो अगली सर्कुलेशन के अंदर ब्लड मूव होगा, उसका वाटर पोटेंशियल जो होगा वो पहले से ज्यादा होगा। पहले कम था ना, अब जब वाटर रीअब्सॉर्ब हो गया किडनी से, तो वाटर पोटेंशियल बढ़ गया पहले से, बिल्कुल बढ़ गया। सो लेट्स से भाई आई हैड अबाउट, लेट्स से 10 रुपीज, सही है? आरफा गिव्स मी 10 रुपीज मोर, डू आई हैव मोर मनी देन आई हैड बिफोर, राइट? अब जब यही वाला ब्लड, नाउ दिस ब्लड हैविंग अ हायर वाटर पोटेंशियल, अब जब ये दोबारा हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, अब जब ये दोबारा हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, देखो एडीएच इज अ हार्मोन डायबा, ADH will bind or will attach where? In the collecting ducts। और वहां वो कलेक्टिंग डक्ट से क्या करवाएगा बेटा? वाटर की रीअब्सॉर्प्शन। बात समझ में आई? ठीक है, ओके। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम।
Okay, now when the very same blood with a high water potential will go to the hypothalamus, hypothalamus कहेगा अच्छा अब तो मेरे पास जो वाटर पोटेंशियल है ना ब्लड का वो सेट पॉइंट के ऊपर आ गया है। वो दोबारा पिट्यूटरी ग्लैंड को एक मैसेज भेजेगा। वो कहेगा अच्छा यार पिट्यूटरी अब ना अब और वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं करवाओ। वाटर सेट पॉइंट के ऊपर आए हुए तुम और वाटर रीअब्सॉर्ब करवाओगे ब्लड का वाटर पोटेंशियल सेट पॉइंट से बढ़ जाएगा। So the hypothalamus will stimulate the pituitary gland again and will tell it to stop the production of what? Of ADH. अब जब ADH रिलीज नहीं हो रहा होगा, पुराना हार्मोन्स क्या होते हैं, पुराने वाले हार्मोन्स जो होते हैं ना, ये जो भी हार्मोन्स होते हैं, whenever they bind onto the receptor they break down फौरन से। That's why they have to be produced again and again and again। ठीक है, उनका इफेक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। थ्रू अ न्यूरॉन हसन, थ्रू दिस न्यूरॉन, नर्व सेल्स। अच्छा, तो अब क्या होगा, अब एडीएच की प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। ये बताने का मकसद क्या है कि दिस इज हाउ, एज हसन सेड कि सर दिस इज हाउ द हाइपोथैलेमस इज एक्टिंग एज अ रिसेप्टर। इट्स गेटिंग टू नो कि भाई कौन सा वाला हमारे पास होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म, चाहे वो टेम्परेचर हो, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हो, चाहे वो वाटर पोटेंशियल हो, कम है या ज़्यादा है, फ्रॉम व्हाट पॉइंट, फ्रॉम द सेट पॉइंट। And through the effects or through the neurons or the nerve cells, it's going to tell all the other cells of the body, कि अच्छा भाई अब तुम्हें ये करना है। तो जब हम लोग एट द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था नेगेटिव फीडबैक का। हमने क्या पढ़ा था कि कभी भी कोई भी इंटरनल कंडीशन अपने सेट पॉइंट से शिफ्ट कर गई, कम हो गई या ज्यादा कर गई, इस चेंज को, इस स्टिमुलस को कौन रिसीव करेगा? रिसेप्टर। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जब ब्लड का वाटर पोटेंशियल कम हो गया, ये तो एक स्टिमुलस है, इसको किसने रिसीव करा? इसको हाइपोथैलेमस ने रिसीव करा। हाइपोथैलेमस किसकी तरह काम कर रहा है? रिसेप्टर की तरह। जब ये रिसेप्टर रिसीव कर लेगा चेंज को, ये रिसेप्टर किसको स्टिमुलेट करेगा? इफेक्टर को। तो हमने देखा ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा था कि अच्छा ब्लड का वाटर पोटेंशियल अगर हमें दोबारा बढ़ाना है ना, सो वी हैव टू रिलीज एडीएच। बात समझ में आ रही बच्चों? डू वी गेट दिस? ऑलराइट। अच्छा, अब I have a statement. It has nothing to do with this chapter. It has nothing to do with the syllabus. You're not going to be asked about it. बस it's just my way of seeing कि तुम लोगों को कितना समझ में आया कितना नहीं आया। अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, what you are supposed to do is, or what you're going to do is, you're just going to tell me if you agree with it or not। ठीक है, मैंने कहा कि high concentration of ADH where in the blood has a negative feedback effect on its what? On its production। कि अगर एडीएच की कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा हो जाएगी तो इट विल प्रोड्यूस अ नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट ऑन किसकी प्रोडक्शन? एडीएच अपनी प्रोडक्शन। डू वी एग्री विद इट और डू वी नॉट एग्री विद इट? फाइजा, अभियान, मनीजा, वहीबा, कुमैल, राइट। देखो, अरे एफएसएचएलएच के बारे में बात करेंगे ना, आंसर क्वेश्चन दिया इन द क्लास बेटे। ठीक है, देखो कॉमन सेंस वाली बात है ना। अगर मेरे पास एडीएच ब्लड में ज्यादा होगा तो वो ज्यादा क्या करवाएगा? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाएगा। जब ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी ब्लड के अंदर तो ब्लड का वाटर पोटेंशियल वापस से बढ़ता जाएगा। जब ब्लड का वाटर पोटेंशियल दोबारा बढ़ गया, हमें और एडीएच की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। तो एडीएच का जो सिंथेसिस या रिलीज होगा वो क्या हो जाएगा? वो रुक जाएगा। राइट। सो आई एम ओनली टेलिंग यू दिस ताकि तुम लोग का एक जो नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो तुम लोग को समझ में आए। यहाँ भी तो वही हो रहा है कि अगर एडीएच की कंसेंट्रेशन बढ़ गई तो ब्लड का वाटर पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा।
ये हाई वाटर पोटेंशियल हमारे पास क्या है? इट्स अ स्टिमुलस। ये स्टिमुलस किसने रिसीव करा? हाइपोथैलेमस ने। हाइपोथैलेमस किसकी तरह एक्ट कर रहा है? रिसेप्टर की तरह। इसने किसको स्टिमुलेट करा? पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो कि किसकी तरह काम कर रहा है? एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है ना। लो वाटर पोटेंशियल ऑफ ब्लड के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था? एडीएस प्रोडक्शन। हाई वाटर पोटेंशियल में वो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा? एडीएस की प्रोडक्शन को रुकवा दो। An effect is an effect, right? I open my eyes when I wake up, that's an effect. I close my eyes when I have to sleep, that's an effect, right? I'm producing an effect in either cases. Do we get this? ये वाली बात समझ में आ रही है? देखो गोमेल, जब मेरे पास वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, हाइपोथैलेमस देखेगा कि अच्छा वाटर पोटेंशियल बढ़ गया, अब आई डोंट नीड टू रीअब्सॉर्ब एनी मोर वाटर, so it's going to tell the pituitary gland to stop the secretion of ADH, right? बात समझ पाए कमाल बेटे? Right? So with this we are finally done with osmoregulation. ठीक है? So we don't need this anymore. We don't need this anymore. I just wanted to give you a concept, इसलिए हमने ये पूरी चीज़ करी थी। ये हमारे A2 लेवल वाले बच्चों को ज़्यादा काम में आती है rather than O levels वालों को, but it's good that you have a concept now, and I'm very glad that you guys got this. So with this, we're finally done with osmoregulation.